Assalamu alaikum students. I welcome you to the lecture number 12 or decision making in non-profit sector. Today's agenda is that we will be having a preview of the last lecture. We will be seeing the United Nations terminologies again, the civil society in the light of United Nations and non-profit sector organizations, United Nations Education Fund, International Children Education Fund, United Nations Military Observer Group, United Nations World Food Program, and at the end, conclusion. Like we have discussed in the past, in last lectures, there are various terminologies under United Nations for non-profit sector organization, and there is no one terminology of non-profit sector organization. First one is BINGOs, big international non-government sector organizations, BONGOs, business organized non-government sector organizations, CBOs, community-based organizations, CSOs, civil society organizations, ENGOs, environmental non-governmental organizations, GONGOs, government organized non-government organizations, IPOs, indigenous people organizations, GROs, grassroots organizations, GSCOs, global social change organizations, NPOs, non-profit sector organizations, एंड VOs यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. सो ये वो सारे नाम हैं, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं. In short, there is no agreed terminology for describing the NGO sector. In some ways, it is easier to describe what NGO are not rather than what they are. और जरूरी नहीं है कोई एक टर्मिनोलॉजी हो एनजीओ सेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए. इट इज जनरली एग्रीड दैट एनजीओ are not an art of government or organized primarily for private profit. It is again for a voluntary purpose. It is again for a philanthropic purpose. It is again for the marginalized community. It is again for the sustainable development. It is not for the profit motive. It is there for the social development. It is there for investment on the humankind, on the investment of a mankind. As far as civil society is concerned, United Nations के जो panel है, they describe civil society in the following ways. The association of citizens की outside their families, friends and businesses entered into a voluntarily to advance their interests, ideas and ideologies. The term does not include profit making activity, the private sector or governing the public sector. So the civil society के लिए कोई ऐसी एसोसिएशन सिटीजन्स की जो आउटसाइड देयर फैमिली हो, आउटसाइड देयर फ्रेंड्स हो, आउटसाइड देयर बिजनेसेस हो, दैट इज मेंट ओनली नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव बट फॉर पब्लिक मोटिव, फॉर द प्राइवेट, फॉर द philanthropic approach. As far as United Nations and non-profit sector organizations are concerned, in short, there is no agreed terminology. Like I have told you, I am repeating it again. In some ways, it is easier to describe what NGOs are exactly doing, depending upon their themes, in which theme non-government sector organization is working. As far as relevance to the United Nations is concerned, of particular relevance to the United Nations are mass organizations such as the organizations of peasants, women, or retired people, trade unions, professional associations, social movements, indigenous people organizations, academic and public benefit non-governmental organizations. So these are the organizations which comes under civil society perspective under United Nations. As far as NGOs and United Nations are concerned, 10 years ago there was a little talk of civil society in the corridors of power, but now the walls reverberate with at least the rhetoric of partnership, participation and role of citizen groups in promoting sustainable development, like we have discussed in the past lectures. United Nations का जो ये perspective है regarding कि 10 साल पहले there was a little talk, बहुत कम डिस्कशन की जाती थी सिविल सोसाइटी पे, लेकिन अब जो है वो जो डिस्कशन की जाती थी वो इन ऐवानों में, इन द पावर हाउसेस में, इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, बट नाउ द वॉल्स रिवर्बरेट. और इसमें अब आप देख रहे हैं कि
पार्टनरशिप एंड रोल ऑफ सिटीजन्स बहुत ज्यादा शामिल हो गया है। क्या प्रमोट करना चाहते हैं ये लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट डिजास्टर जो 2005 का आया अर्थक्वेक के बाद, कितनी ज्यादा इमदाद जो है ओवरऑल इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट ने, ऑर्गेनाइज्ड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज ने की, रिलीफ फेज में, रिकंस्ट्रक्शन में भी देखा, रिहेबिलिटेशन में भी देखा, और नंबर ऑफ एनजीओज हु आर एक्टिव एट यूनाइटेड नेशंस एंड दे आर ग्रोइंग रैपिडली since the 1990. Now it is the number is increased. As far as donors, UNICEF is concerned. Donors, UNICEF, United Nations International Children Education Fund, they have got camps in outskirts of Charsada city when it was hit by floods. The camps are hosting a total of 332 families, including 1460 children and 440 women. 332 फैमिलीज हैं और जिसमें 1460 चिल्ड्रन हैं और 440 वुमेन हैं उन कैंप्स के अंदर। यूनिसेफ इज प्रोवाइडिंग वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज फॉर द डिस्प्लेस। सो अब आपको इसकी यूनिसेफ की थीम का अंदाजा हो गया कि ये सिर्फ इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड नहीं है, ये वाटर एंड सैनिटेशन पे भी काम कर रहा है उस कैंप के अंदर, हेल्थ हाइजीन इश्यूज पे भी काम कर रहा है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और उन लोगों के लिए जो इंटरनली डिस्प्लेस पीपल हैं, जिसमें से 1460 बच्चे हैं, 440 वुमेन हैं और 332 फैमिलीज हैं। यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंथनी लेक, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इधर सामने, ही एडमिनिस्टर्ड द ओरल पोलियो कैंपेन, वैक्सीन कैंपेन टू अ बेबी एट द प्रांग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेल्टर इन चारसदा डिस्ट्रिक्ट located in Pakistani province of Khyber Pakhtunkhwa. So the executive directors of UNICEF, they are also playing their role. They are coming to the sites, they are visiting the camps frequently, and they are the part of the activities like polio vaccine एक बच्चे को पिला रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ के जो हैं एंथनी लेक, उन्होंने प्रांग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है, जो कि चारसदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इन पाकिस्तान, उसमें उन्होंने विजिट किया और विजिट करने के बाद उनको वैक्सीन्स भी पिलाई। तो बताने का मकसद ये कि डोनर एज यूनिसेफ इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द चिल्ड्रन, ऑन द वैक्सीन, ऑन द एजुकेशन साइड, वाटर एंड सैनिटेशन पे भी काम कर रहे हैं, हेल्थ हाइजीन पे भी कर रहे हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज पे भी कर रहे हैं। UNICEF is going to do everything it can, not just during this emergency, but as Pakistan works its way out of emergency as well. According to Anthony Lake, Mr. Anthony Lake, Executive Director of UNICEF, he was of the view that UNICEF, we are going to do everything. Not just कि अभी चूंकि डिजास्टर हिट हुआ, सैलाब आ गया तो हम लोग रिलीफ में, इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, बट हम लोग इमरजेंसी के अलावा भी यूनिसेफ जो है इट इज वर्किंग सिग्निफिकेंटली, और दे आर प्रोवाइडिंग अदर इनिशिएटिव्स, अदर हेल्प टुवर्ड्स द नीडी इन दैट एरिया. Then there are certain boys who are playing a board game in UNICEF-supported child-friendly space at the Prang Government Primary School in Charsada District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. के अंदर ये जो है, the school is being used as a relief camp for flood affected families. So बच्चे वो जो हैं वो board game खेल रहे हैं और लूडो खेल रहे हैं, और UNICEF-supported एक child-friendly space है प्रांग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चारसदा के अंदर, और वहां पे एक रिलीफ कैंप के अंदर जो है ये बच्चे जो हैं, इनकी तस्वीर आपके सामने है. तो यूनिसेफ इज आल्सो सपोर्टिंग लाइवलीहुड इन दैट कैंप. इट इज बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन द लाइवलीहुड साइड टू. और UNICEF, this is one of the last areas in the world where there is polio, so the whole world will be watching to see how well we can do in preventing another outbreak. Not just with measles, not just with diarrhea, but with polio. Again, Mr. Lake, Anthony Lake and UNICEF के जो executive director थे, उन्होंने ये बात बोली कि polio is not the only issue. Malaria is another issue. Measles is another issue. Diarrhea is another issue. और ये जरूरी नहीं है कि ये एक
आखिरी एरिया है यूनिसेफ की जो टारगेट है कि पोलियो सिर्फ वैक्सीनेशन देनी है. देयर अदर एरियाज टू जहां पे यूनिसेफ इज डिलिजेंटली वर्किंग और दे आर वॉचिंग एंड दे आर प्रिवेंटिंग अनदर आउटब्रेक. वो इट कैन बी मीजल्स, इट कैन बी डायरिया, और बच्चों के जो डायरिया के इश्यूज हैं या बच्चों के मीजल्स के इश्यूज हैं उस पर भी यूनिसेफ इज वर्किंग डिलिजेंटली. बट इट्स नॉट विद पोलियो ओनली, पोलियो के साथ भी काम कर रहे हैं. But they are witnessing, they are watching, and they have a close eye on rest of the problems too. जो कैंप्स हैं चारसदा में, they are small oases of safety in a country. They has been devastated by its largest disaster in the living memory. Yes, floods have hit those areas. चारसदा अगर आप देखा जाए तो चारसदा is surrounded by 4 rivers. और वहाँ पे सैलाब का हर हालत में खतरा रहता है. और गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज दे हैव फेल्ड इन प्रोवाइडिंग रिलीफ and other towards the children. So UNICEF intervened, and UNICEF is basically targeting the young children, the families, the internally displaced people. उनको water and sanitation plus health facilities plus बच्चों की तालीम वो उन्हीं camps के अंदर UNICEF जो है वो दे रहे हैं. Nearly 8.6 million children have been affected by the floods throughout Pakistan. 8.6 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं अब तक सैलाब से जो अफेक्ट हुए हैं, और 3.5 आर एट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वाटर बोर्न डिजीजेस. अब पानी से जो डिजीजेस है उसमें आशूब चशम भी है, उसमें गैस्ट्राइटिस भी है, उसमें स्नेक बाइट्स भी हैं, उसमें और भी बहुत सी डिजीजेस हैं जो कि मीजल्स भी हो सकते हैं, कोई और भी जो डिजीजेस हैं वो भी हो सकती हैं. 8.6 मिलियन बच्चे जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं और दे आर अफेक्टेड बाय द फ्लड्स और थ्रू आउट पाकिस्तान. और 3.5 मिलियन जो हैं वो एट द रिस्क हैं of contracting or have a contact with the waterborne diseases. और इसमें मैंने जैसे बताया आशूब चशम है और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसपे UNICEF is clearly have a watch. UNICEF is gravely concerned that further disaster will follow unless more aid becomes available immediately. So again, this is again statement by Mr. Anthony Lake of UNICEF, Executive Director. He is of the view that UNICEF is gravely concerned that further disaster will follow, और ये दोबारा आ सकता है disaster unless ज़्यादा हम लोग को aid की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा जल्दी ज़रूरत पड़ेगी उस मकाम पे. क्योंकि चारसदा की मैंने जैसे आपको स्टोरी बताई, चारसदा is surrounded by 4 rivers और वहाँ पे सैलाब का डर रहता ही है. Then there is a child, her name is Safia Bibi, she is 11 years old and she reads a book provided by UNICEF at the Jalozai camp for the internally displaced in northwestern Pakistan. There is a Jalozai camp. Once you leave towards from GT Road towards Peshawar, we will find like a big camp, Jalozai, on the before reaching Peshawar. And Jalozai camp is established on the basis just for the needy, just for the internally displaced people who are hit by the disasters. उन families को वहाँ पे लाके रखा गया. अब बहुत ज़्यादा एजेंसीज, सिर्फ यूनिसेफ नहीं और भी बहुत सी एजेंसीज, बहुत से इदारे जो हैं, सेव द चिल्ड्रन भी है उसमें, SRSD वाले भी हैं, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम भी, NRSP वाले भी हैं, बहुत से एक्शन अगेंस्ट हंगर भी काम कर रहा है, ऑक्सफैम GB भी काम कर रही है. तो ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जलोज़ई कैंप में इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल में. और कैंप्स एंड कम्युनिटीज इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस हैज बीन रिसीविंग इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल सिंस 2008. So it was not 2005 Zalzala jab aaya, earthquake hit Pakistan, but after that Pakistan is continuously witnessing disasters in the form of floods. और वहाँ पे मैन मेड डिजास्टर्स भी हैं, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स भी हैं, मैन ओवर मैन मेड डिजास्टर्स भी आपने विटनेस किए होंगे. थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि नेचुरल डिजास्टर इज अ क्लैमिटी जिसमें अर्थक्वेक है, जिसमें फ्लड्स हैं, जिसमें ड्रॉट है, जिसमें टेम्परेचर राइज भी हो सकता है. ये वो डिजास्टर हैं जिसमें ज्यादातर अमवात होती हैं. और यूनिसेफ इज टारगेटिंग द चिल्ड्रन, द फैमिलीज, द मदर्स एंड द चाइल्ड ऑफ दोज फैमिलीज, और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल को उन्होंने कैंप्स के अंदर रखा हुआ है. और जहां तक बात है ह्यूमन मेड डिजास्टर की, तो ह्यूमन मेड डिजास्टर एक बम ब्लास्ट आपने विटनेस किया, दैट इज ह्यूमन मेड डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर. अब इसके अलावा मैन ओवर मैन मेड डिजास्टर भी हो सकता है.
एक बम ब्लास्ट हुआ और उसको आपने कैजुअलिटीज को उठा के अपने अस्पताल शिफ्ट किया, वहां पे अनदर बम ब्लास्ट हो गया, सो देन दैट कैन लीड अप टू डिजास्टर। अब उस सिचुएशन में बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन यहां पे जो बात हो रही है वो नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो रही है, नेचुरल कैलेमिटीज की बात हो रही है, और उसके अंदर अर्थक्वेक हैं, उसके अंदर फ्लड्स हैं, और मेजरली फ्लड्स चूंकि 400 का हिट हुआ है, तो ज्यादातर जितने भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, आईडीपीज जो हैं, उनको जलजई कैंप के अंदर रखा गया, और वहां पे यूनिसेफ इज प्रोवाइडिंग देम वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, हेल्थ हाइजीन पे इनके काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आप और नया इन्फ्लक्स आप देख रहे हैं, लोगों का जो नया इन्फ्लक्स है वो जलजई कैंप में आया है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का, और दे रिक्वायर रिसोर्सेज इन लार्ज एंड सर्विसेज इन लार्ज। UNICEF representative in Pakistan, Dan Rohman, said, with 280,000 people having moved from the Khyber Agency to Nashara district, of which over 50,000 are residing in Jalozai camp, we really have a critical emergency that is not drawing enough attention. Yes, not enough attention is given towards them. Only few agencies in which UNICEF is involved. United Nations International Children Education Fund representative Mr. Rohrman, he said that 280,000 people they have moved from as an internally displaced people from the Khyber Agency towards Nashara district just because of war on terror, which has started. Pakistan Army is involved in combating the insurgency, and इसमें अगर आप देखें तो 2,80,000 लोग जब एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं, और उस मूवमेंट के दौरान उनको किसी कैंप के अंदर रखा जाता है, तो उनकी कफालत है, उनको वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी देनी है, उनको हेल्थ हाइजीन पे उनकी वर्किंग करना है, बच्चों की एजुकेशन पे काम करना है, उनकी मोबिलाइजेशन करनी है, और उनको बताना है कि जब ये सारे मामलात एंड हो जाएंगे तो आपने अपने इलाके में वापस जाना है। तो जलजई कैंप की बात हो रही है कि 50,000 आर रिजाइडिंग इन जस्ट जलजई कैंप। 2,80,000 में से 50,000 बंदा जो है इस वक्त जलजई कैंप के अंदर मौजूद है। द न्यू आईडीपीज, जो नए आईडीपीज आर बीइंग हाउस्ड इन जलजई, तौकसरई एंड न्यू दुरानी कैंप्स, एंड मैनी मोर रिजाइड विद द होस्ट कम्युनिटीज इन पेशावर एंड नौशहरा डिस्ट्रिक्ट। जब ये वॉर एंड टेरर स्टार्ट हुई, जब फ्लड्स आए, तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज जो हैं वो अपने जानने वालों के पास पेशावर चले गए, अपने जानने वालों के पास मर्दान में आ गए, और उसमें उनको होस्ट कम्युनिटीज जो थी उसमें पेशावर में और नौशहरा में, मर्दान में, उन लोगों ने उनको डील किया, उन्होंने उनको जगह दी रहने के लिए। लेकिन ज्यादातर जो नए आईडीपीज आ रहे हैं, दे आर बीइंग हाउस्ड इन जलौज़ई, तौसराय एंड न्यू दुरानी कैंप्स में उनको रखा गया। सो यूनिसेफ हैज इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर US $37.2 million to meet the needs of this complex emergency. Funding of only US $11.9 million has been received so far. 37.2 मिलियन $US चाहिए थे, जिसमें से अब तक 11.9 मिलियन $US रिसीव हुए हैं. रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव, और इस पे यूनिसेफ इज वर्किंग ऑन इट. As far as other prime objectives of UNICEF are concerned, 12 UNICEF established primary schools in the camps. Nearly 4,483 students are enrolled in child-friendly schools, which offer important health and hygiene lessons as well as recreation facilities, psychological support and other features that engage children and their communities. So UNICEF का मेन मकसद वहां पे उनको बैठा के खाना पिलाना नहीं, वहां पे उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में इन्वॉल्व करना, उनको हाइजीन लेसन्स देना. उनका जो विलेज सा बना हुआ है जो कि टेम्पररी होगा, वो कैंप्स टेम्पररी हैं, उन्होंने वापस अपने एरियाज में जाने हैं, तो उन्हें चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स का हिस्सा बनाया गया, जहां पे उनको वो डिजास्टर भुलाने के लिए मैकेनिज्म अख्तियार की गया, उनकी साइकोलॉजिकल नरिशमेंट हुई, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, उनके मेंटल डेवलपमेंट पे काम किया गया. और दे आर एंगेज विद ये क्यों जरूरी है? क्योंकि चिल्ड्रन और कम्युनिटी को एंगेज करना जरूरी है, सो दैट कि वो किसी ऐसी उसमें एनवायरनमेंट के अंदर ना रहें कि वहां पे उनको वही ख्यालात दोबारा हैं कि हम लोगों को दोबारा डिजास्टर हिट करेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. तो हाइजीन लेसन्स देने का मकसद ये कि किस तरीके से वो साफ सुथराई का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से वो सफाई का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से वो साफ खुराक का ख्याल रखते हैं.
अगेन हेल्थ के ऊपर भी, क्योंकि सैलाब के हिट होने से या अदर कोई डिजास्टर आने से बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी सामने आए। जिस वक्त मैंने चारसदा विजिट किया था बैक इन 2009, तो उस वक्त मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, आशूबे चशम के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, स्नेक बाइट्स के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। व्हेन आई टॉक टू डॉक्टर्स ओवर देयर, दे सेड कि these are the patients which are reported, these are the diseases which they have reported. UNICEF की essential services, UNICEF has also established 21 protective learning and community emergency services, the places centers in the camp. कम्युनिटी इमरजेंसी सर्विसेज बना दी गई, उन्होंने एक पूरा कैंप लेके उसके अंदर कम्युनिटी इमरजेंसी सर्विस का काम किया गया। 21 प्रोटेक्टिव लर्निंग एंड कम्युनिटी इमरजेंसी सर्विस, 21 के करीब प्रोटेक्टिव लर्निंग, एक खास सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर उनको लर्निंग देना, उनको नॉलेज देना, उनको तालीम देना और कम्युनिटी की इमरजेंसी सर्विसेज भी देना। एक प्लेसेस बना दी गई कैंप्स के अंदर ही टू प्रोवाइड बेसिकली व्हाट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देयरफॉर psychological, sociological or psycho-social support is provided in addition to education and recreational activities. ये ज़रूरी है क्योंकि इस तरह कहीं कुछ और एक्टिविटीज़ बच्चों के दिमाग में ना जनरेट होती रहें, तो जो साइको सोशल सपोर्ट है या जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। UNICEF, as far as Psyche Gyani, a child protection monitor at one of the places जो कैंप के अंदर मौजूद हैं, उनके बकौल families from tribal areas, especially females, do not stay in camp for long. At times they are here and other times they move back to their villages. Because of this back and forth, they face some psychological problems and social support that we provide in these centers benefits them a lot. तो ये साइका गियानी चाइल्ड प्रोटेक्शन मॉनिटर जो है वो एक उसके बकौल के फैमिलीज जो ट्राइबल एरियाज की हैं, स्पेशली फीमेल्स, दे आर ऑन द वे ऑफ मूविंग बैक टूवर्ड्स देयर विलेज, देन कमिंग टू द कैंप, देन बैक टू द विलेज, एंड दिस इज बेसिकली दे रिक्वायर अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट. तो उसके लिए in the camp child protection monitors are there and they are providing psychological support towards them. जेलिज़ई कैंप की बात की जाए, इन जेलिज़ई कैंप यूनिसेफ एंड पार्टनर्स जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस यूनिसेफ के साथ काम कर रही हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सेफ वाटर टू मोर देन 58,000 पीपल एंड आर मेंटेनिंग 4,000 latrines, 1,800 washrooms, 1,000 washing pads and 200 solid waste collection points. Thousands of families have received hygiene kits, buckets and jerry cans. ये जेलिज़ई की बात की जाए, यूनिसेफ और जो उसके कोऑपरेटिंग पार्टनर्स हैं, जो एनजीओस उसके साथ काम कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सेफ वाटर टूवर्ड्स 58,000 people and maintaining 4,000 latrines for them, health and hygiene के लिए, और 1,800 washrooms, 1,000 washing pads and 200 solid waste collection points, जहां से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, और 1,000 of families have received hygiene kits, buckets and jerry cans. So we were discussing about जेलिज़ई कैंप और यूनिसेफ और कोऑपरेटिंग पार्टनर्स की एक्टिविटीज. आपने देखा कि सिर्फ वहां पे लाके फैमिलीज को एडजस्ट कराना नहीं है, वहां पे उनको खुराक का ख्याल रखना, उनकी हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखना, उनको न्यूट्रिशन, जैसे मैंने खुराक का बोला, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देना, और हाइजीन किट्स उनको फराहम करना, उनको शटर्स देना कि वो उनमें रह सकें, उनको टेंट्स देना कि वो उनमें रह सकें, बकेट्स देना ताकि वो मतलब उसको यूटिलाइज कर सकें, एंड जेरी कैन्स देना. तो ये बेसिकली, और कितनी आप देखें कितनी ज्यादा वर्थ की अचीवमेंट है कि 58,000 पीपल को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है उस कैंप के अंदर, जेलिज़ई कैंप के अंदर, विच इज द बिगेस्ट कैंप. 4,000 के करीब लैट्रिन्स जो हैं वो उन्होंने तैयार की हुई हैं एंड दे आर यूटिलाइजिंग इट, IDPs, एंड 200 सॉलिड वाटर कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहां से गंद को या वेस्ट को दे रिमूव फ्रॉम द कैंप. UNICEF is providing critical service to the new IDPs. जो नए internally displaced people हैं, उनको भी UNICEF critical services दे रही है. Immunization is one of them because many of the children have not been vaccinated for years.
This is a problem in Pakistan that we have witnessed that के या तो लोगों के पास पैसा नहीं होता या तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती हेल्थ के लिहाज से, और वो अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन जो है या उनको वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं देते. तो यूनिसेफ इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन और उस वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं. सेकेंडली, न्यूट्रिशन सर्विसेज आर क्रिटिकल बिकॉज मैनी चिल्ड्रन हु कम हियर आर सिवियरली malnourished. That means कि उनकी खुराक ठीक नहीं है, उनको न्यूट्रिशन का मसला है, जिसके तहत ये भी यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये नए जो आईडीपीज आ रहे हैं उनके अंदर वैक्सीन्स लगाना भी एक प्रोजेक्ट है, प्लस उनको न्यूट्रिशन सर्विसेज देना भी एक प्रोजेक्ट है, जो कि बच्चों के अंदर ज्यादा देखा गया. और वो चूंकि उनकी खुराक जो है किसी डिजास्टर की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से चूंकि वो कैंप्स की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो खुराक जो है उनकी वो ठीक नहीं है, वो माल नॉरिश्ड है. और ये यूनिसेफ का जो इकदामात हैं कि वो इस लिहाज से भी दे आर वर्किंग ऑन इट. देन प्रिवेंशन ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. इट हेल्प्स प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड ऑफ कोर्स जो साफ सुथरा पानी है, पानी से जो हेपेटाइटिस का मसला है, आशूब चशम का भी इशू है, गैस्ट्राइटिस का भी इशू है, स्नेक बाइट्स का भी इशू है. तो ये क्लीन वाटर जो है और सैनिटेशन फैसिलिटी ये देना कैंप्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो खत्म हो सकती हैं. एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन प्रोवाइड्स अ पॉसिबिलिटी टू रिकनेक्ट विद अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट हैज बीन डेयरली मिस्ड बाय देम. जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उन बच्चों को अब कैंप्स के अंदर बिठा के वहां पे एजुकेट किया जा रहा है, वहीं पे वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी भी दी जा रही है, वहीं पे न्यूट्रिशन सर्विसेज भी दी जा रही हैं, वहां पे उनकी वैक्सीनेशन पे भी काम हो रहा है. तो यूनिसेफ इज प्लेइंग देयर रोल सिग्निफिकेंटली. और इसमें ये भी चीज है कि एक थीम नहीं है. अगर आप देखें, न्यूट्रिशन इज वन थीम, हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ दोज पीपल इज अनदर थीम, एंड ये सिर्फ एक यूनिसेफ का काम नहीं है. देयर आर कोऑपरेटिंग पार्टनर्स विद यूनिसेफ जो कि जलौज़ई में बैठे हुए हैं और उनकी फील्ड मॉनिटर्स हैं. जिस तरह मैंने आपको चाइल्ड हेल्थ मॉनिटर की एग्जांपल दी जो लास्ट स्लाइड पे उसने वर्किंग की, और उसमें ये बता दिया गया कि किस तरीके से औरतें जो हैं वो आईडीपीज जो हैं वो अपने इलाके में वापस जाती हैं आती हैं, जिससे उनको साइकोलॉजिकल इशू भी होता है. साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए भी यूनिसेफ हमा वक्त तैयार होती है. लेकिन अगेन 37.8 मिलियन यूएस डॉलर्स चाहिए थे, जिसमें से 11 पॉइंट समथिंग रिसीव हुए हैं, मिलियन डॉलर्स रिसीव हुए हैं. अभी और भी इमदाद की जरूरत है और आईडीपीज आर स्टिल देयर. और सिक्योरिटी इशू वहां पे जलौज़ई कैंप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जलौज़ई कैंप में सिक्योरिटी इशू इज ऑलवेज द बिगेस्ट थ्रेट टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. और सिक्योरिटी थ्रेट वहां पे कई दफा बम ब्लास्ट को विटनेस किया गया, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के भी स्टाफ ने अपने आप को रोक दिया काम करने से. तो यूनिसेफ इज प्रोवाइडिंग क्रिटिकल सर्विसेज, और इस लिहाज से यूनिसेफ इज without regard to any security issue, without regard to any threat, UNICEF is working diligently for the children, for the rest of the IDPs settled in the camp. Almost 50,000 IDPs हैं जिनको वाटर फैसिलिटी, क्लीन वाटर फैसिलिटी मिल रही है. और ये क्यों मिल रही है? क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेस को खत्म किया जाए और उनके अंदर लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो कि वो मिस कर रहे थे बच्चे, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी उनको फराहम की जाए. This is a 10 years old Reshma who walks in front of her destroyed house in Jacobabad district, Sindh. This is another example of UNICEF working. Nearly 4,60,000 houses have been swept away or badly damaged by flooding. और जो recent flood आए उसमें ये जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट सिंध की एग्जांपल दे रही है, अपने घर के सामने वॉक कर रही हैं. और ये 10 साल की बच्ची है रेशमा, और इसके 4 लाख, अगर आप देखें 4,60,000 घर जो हैं वो पानी की नजर हो गए और बैडली डैमेज बाय फ्लडिंग हुए. चिल्ड्रन आर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ सच इमरजेंसीज. ये चीज ऑब्जर्व की गई कि ऐसी इमरजेंसी के बाद सबसे ज्यादा जो लोग मुतासर होते हैं वो बच्चे मुतासर होते हैं. तो यूनिसेफ इज टारगेटिंग देम. disproportionate risk for children. जो सैलाब आया, जो rainfall continuously for several days in early September and inundating many areas of southern Punjab, northern Sindh and northern Balochistan. बहुत ज्यादा बारिशें हुई सितंबर में, जिसकी वजह से रेनफॉल और पानी सैलाब आ गया. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी puts the number of affected people at 5.06 million with satellite
imagery showing that the large areas of 15 districts were flooded. 15 डिस्ट्रिक्ट फ्लडेड हैं. अगर आप एवरेज ले लें, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 12 तहसील्स हैं या 12 यूनियन काउंसिल्स हैं या 12 मेजर विलेजेस हैं, तो आप अंदाजा लगा लें, मल्टीप्लाई कर लें 15 के साथ, कितनी ज्यादा आवाम जो है वो इससे सैलाब की वजह से हिट हुई है. और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है NDMA, उसके तहत जो नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल हैं वो 5.6 मिलियन. और जब सैटेलाइट इमेज लिया गया तो 15 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो फ्लड की नजर हुए हैं. More than 1.12 million acres of crops have been affected and nearly 4,60,000 houses have been swept away. Reports from the field, जो field से report आई, उसके तहत families affected this year are even worse than those who were affected last years और previous flood जब आए. और they are the dire need for shelter. They require shelter, they require food, they require water sanitation, they require health care, malaria prevention and education. ये malaria prevention is the biggest issue. अगर आप देखें तो सैलाब का पानी जो है उसके अंदर भी मलेरिया के जरासीम मौजूद हो सकते हैं, मलेरिया के मच्छर मौजूद हो सकते हैं. तो दे आर डायर नीड फॉर शेल्टर. उनको शेल्टर चाहिए, उनको फूड चाहिए, उनको वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए, उनको हेल्थ केयर चाहिए, मलेरिया प्रिवेंशन एंड एजुकेशन के लिहाज से भी काम करने की जरूरत है. जाहिर बात है कोई एक बंदा नहीं है, 5.6 मिलियन लोग और 4,60,000 घर तबाह हुए. इतनी ही लोग डिस्प्लेस हुए हैं जैकबाबाद सिंध में. और यूनिसेफ इज प्लेइंग देयर रोल इन द आफ्टरमैथ ऑफ फ्लड emergencies such as this one. Children become disproportionately susceptible to diseases and malnutrition and may are unable to attend school. Definitely they are not attending school. They are बच्चों को जहनी लिहाज से भी मसला है, डिजीजेस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, माल न्यूट्रिशन भी, उनकी खुराक भी ठीक नहीं है. तो अगेन यूनिसेफ इज देयर. रेशमा जिसकी तस्वीर आपको दिखाई हैज नॉट बीन एबल टू अटेंड स्कूल फॉर वीक्स. द 2-room स्कूल बिल्डिंग क्विकली फिल्ड विद हाउस होल्ड आइटम्स एज विलेज रेजिडेंट्स रश टू द सेफ प्लेस व्हेन द वाटर हिट दैट एरिया. जब पानी बढ़ना शुरू हुआ, राइज होना शुरू हुआ, तो उन्होंने जो सेफ प्लेस थी वो स्कूल समझी और उसी में सारा सामान डंप कर दिया अपना. The downpours also deluge what had looked like a bountiful rice crop just before harvest. Week later the land is still with flood waters. और लोग बेचारे उनको उसमें चीजें उगा रहे थे और वो वहां पे अब पानी ही पानी है. The rice itself will be useless. Although the grassy stems can be chopped off to use a fodder for livestock. Again ये जो घास बढ़ गया, जो खारदार घास होता है, वो उसको काट के जो बढ़ रहा है लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Again the lives are disrupted over there in Jacobabad Sindh. Again Reshma holds a doll she has made. She is waiting for the flood water to recede so she can return to school and also help her family build a new home. For now, we need food and water, she says. This is when the flood hit that area, Jacobabad Sindh, and this child is in the dire need for food and water. She is having, again, a school issue is there. She was attending school, now she is not attending. Or again, she's going to help her family up to build a new home. रेशमा की अगर मैं स्टडी को आपको बता रहा हूँ तो दिस इज वन इंटरनली डिस्प्लेस चाइल्ड जो कि यूनिसेफ के अंडर है. और रेशमा स्पेंड्स हर डेज वेटिंग फॉर द वाटर टू रिसीड. पानी वहां से सूख जाए या खत्म हो जाए और शी कैन गो बैक टू स्कूल एंड ऑल्सो हेल्प हर फैमिली बिल्ड अ न्यू होम. अंटिल देन हर डिजायर्स आर मॉडेस्ट. उसकी ख्वाहिशात मॉडेस्ट हैं. वी नीड फूड एंड वाटर, शी सेज. राइट नाउ वी लिव इन अदर्स होम. हम लोग किसी और के घर में रह रहे हैं. आई विल बी कॉन्टेंट वंस आई गो बैक टू माई होम. मुझे खुशी होगी जब मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी. सो प्रोवाइडिंग वाटर, एजुकेशन एंड प्रोटेक्टिव स्पेसेस इन रिस्पॉन्स टू द फ्लड इमरजेंसी, यूनिसेफ एंड पार्टनर्स. एंड अगेन जब पार्टनर्स की बात आई, कॉर्पोरेटिंग पार्टनर्स का जिक्र होगा, उन एनजीओ का जिक्र होगा यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं. अगर हेल्थ एंड हाइजीन का इशू है तो हेल्थ एंड हाइजीन के लिए कॉर्पोरेटिंग पार्टनर होगा. अगर न्यूट्रिशन का इशू है तो न्यूट्रिशन के लिए कॉर्पोरेटिंग पार्टनर होगा.
In response to the flood emergency, UNICEF and partners are providing safe drinking water facility to 2,67,900 flood-affected people in Balochistan, Punjab, and Sindh. If funding permits, अगर funding की इजाज़त हो, तो UNICEF, government, and cluster partners plan to provide emergency education services. Emergency based schools बना दिए जाएं और to 21,000 children by establishing 1,147 temporary learning centers. 1,147 temporary learning centers बना दिए जाएं, 21,000 बच्चों के लिए कुछ इमदाद की जाए अगर फंडिंग हो तो, और उनके लिए स्कूल बनाए जाएं, emergency school which aims to provide safe and secure learning environment that promote the protection and well-being of the students. Yes, this is the requirement of the time, this is the need of the time, and UNICEF along with the rest of the cooperating partners, they are working diligently, but due to the lack of funding they are helpless, but they are still consistent on what they have achieved, and they are maintaining that standard up. But 15 are already up and running, benefiting more than 2,100 children. Children in these centers will be mainstreamed back into regular school as either continuing or new students. So जब सैलाब का पानी रसीड हो जाएगा, वहाँ से खुश्क हो जाएगा, तो वो अपने स्कूलों में दोबारा से ज्वाइन करेंगे या तो वो दोबारा से एडमिशन लेंगे. एक और बड़ा मसला बच्चों के लिए कि वो जाएंगे और दोबारा से स्कूलों में एडमिशन लेंगे या वो वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे. तो जो टाइम ड्यूरेशन उनका ज़ाया हुआ इस पूरे हादसे में, यूनिसेफ एक सेफ इन्वायरमेंट दे के 21,000 बच्चों को और एक टेम्पररी स्कूल दे के वो जो टाइम ड्यूरेशन इनका ज़ाया हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से कंपनसेट कर रहा है ताकि उन बच्चों का नॉलेज ज़ाया ना हो, उन बच्चों को रहने के आदाब, हेल्थ एंड हाइजीन के आदाब, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देना, ये यूनिसेफ के मेन खदोखाल हैं. As far as child protection, which is a sub-cluster of United Nations International Children Education Fund, child protection sub-cluster including UNICEF, Save the Children and Action 8. अब ये दो child protection sub-cluster हैं जिसमें Save the Children भी, Action 8 भी है, UNICEF भी है, has established 16 protective spaces in Sindh, benefiting more than 1,658 children. बच्चे जो हैं इन्होंने प्रोटेक्टिव स्पेस दी है, सेफ जगह दी है जहां पे वो रह सकें, और बच्चों को सिंध के अंदर 1,658 बच्चों को उन्होंने प्रोटेक्टिव स्पेस दी है. 46% आर गर्ल्स. इन एडिशन 379 चिल्ड्रन, जिसमें से 49% गर्ल्स हैं एंड 73 वुमेन हैं, हैव रिसीव्ड और रिसीविंग psychosocial support and have access to recreational activities through the child protection sub-cluster response. So again, this is a working of UNICEF. Preparing for the future, the impact of devastating flood. Yes, floods are there and they are going to hit those places. If there is a place like I have given the example, and it is surrounded by 4 rivers, so definitely flood is going to hit there. Then Allah maaf kare, if it is like that, then the role of UNICEF in such coordination, in such emergency, it start rising. Or the impact of devastating flooding in Pakistan over the past 3 years has been particularly severe to millions for millions of children, and says emergency coordinator जो UNICEF के पाकिस्तान के ऑस्कर बचरगिनो. Recurrent natural disaster affect Pakistan ability to achieve development goals. जब इस तरह की डिजास्टर आ जाता है तो अगेन डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं होते, तो और दूसरा वो जो पब्लिक जो से अफेक्ट होती है. दिस इज व्हाई यूनिसेफ नॉट ओनली रीचेस आउट टू फ्लड अफेक्टेड चिल्ड्रन and their families in the country most disadvantaged areas, but we are committed to mitigate the impact of disasters on children and increasing community resilience by integrating disaster risk reduction into all of our work. हम लोग यूनिसेफ का ये जो पाकिस्तान के ऑस्कर कोऑर्डिनेटर है इमरजेंसी के, उनके ख्याल में दे आर प्रोवाइडिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फैसिलिटीज टू ऑल ओवर ड्यूरिंग द वर्क, when they are in the community, when they are in the camps, and they are really trying to mitigate the impact of disasters on children and increasing community resilience. community की बर्दाश्त को बढ़ा रहे हैं, वो जो टॉलरेंस लेवल उसको इंक्रीज किए जा रहे हैं, और सो दैट कि वो अपने आप को डिजास्टर रिस्क रिड्यूस कर सकें, उनका वो अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें.
तो यूनिसेफ इज नॉट ओनली रीचिंग टू द फ्लड अफेक्टेड एरियाज, अफेक्टेड चिल्ड्रन, कि बच्चे आ गए कैंप्स के अंदर तो उन पे काम कर रहे हैं, बट दे आर रियली वर्किंग ऑन दोज एरियाज जहां पे फ्लड्स के हिट होने के चांसेस हैं, जहां पे डिजास्टर के हिट होने के चांसेस हैं. देन यूनिसेफ की क्या रिक्वायरमेंट है? टू कंटिन्यू लाइफ सेविंग एक्टिविटीज, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको कंटिन्यू करने के लिए. इन रिस्पॉन्स टू द 2012 monsoon floods, UNICEF urgently needs US 15.4 million to provide flood affected communities with timely and adequate assistance through the next 3 months. जो आने वाले 3 महीने, ये लेटेस्ट न्यूज है. 2012 की मूनसून जो फ्लड्स आए उनकी वजह से बहुत से लोग मुतासर हुए. यूनिसेफ को अर्जेंटली 15.4 मिलियन US डॉलर की जरूरत है और सो दैट कि वो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज को टाइमली और एडवोकेट असिस्टेंस दे सकें 3 महीनों के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के आने के. एज फार एज दिस वाज द फैक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन साइड, अगर हंगर के फैक्ट्स देखे जाएं, द मूनसून फ्लड्स इन अगस्त हिट अ कंट्री ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद द हाई लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, high food prices and humanitarian crisis along its borders with Afghanistan. So Pakistan has got a hunger facts, और वो hunger facts जो हैं, पहला fact ये कि 20 million affected by the floods. The Pakistani floods this summer impacted the lives and livelihood of some 20 million people, around 10 million of whom required emergency food assistance. जब फ्लड्स आए हैं 20 मिलियन लोग जो हैं मुतासर हुए हैं. पहले हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड की, अब हम लोग बात कर रहे हैं हंगर की, कि पाकिस्तान के अंदर हंगर की रेशो क्या है. जब फ्लड हिट हुए 20 मिलियन आर अफेक्टेड बाय द फ्लड, और ये they are continuously demanding, they are in the dire need of emergency food assistance. और around 10 million तो ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरत में हैं. उनको शेल्टर भी चाहिए, उनको फूड भी चाहिए, उनको हेल्थ पे भी काम करना, उनकी माल न्यूट्रिशन भी है. सो 20 मिलियन. और फर्स्ट फैक्ट ये है हंगर साइड से कि 20 मिलियन फ्लड से अफेक्ट हुए. सेकेंड, nearly 1 in 2 Pakistanis at risk. Pakistan suffered from the widespread hunger even before the monsoon floods. जब floods आए थे उससे पहले भी पाकिस्तान यही चीज सफर कर रहा था. With an estimated 82.6 million people, a little less than the half the population estimated to be food insecure. जो 82.6 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के, और जो रेस्ट हैं उनको तो फूड अवेलेबल है, लेकिन 82.6 मिलियन लोग हैं जो कि सैलाब आने से पहले भी दे वर हैविंग अ फूड इनसिक्योरिटी. और दिस इज अ डायलेमा टुवर्ड्स द कंट्री दैट वी आर फेसिंग सच क्राइसिस. पहली तो चीज है कि 20 मिलियन तो अफेक्ट हुए सैलाब से, और जब 20 मिलियन के बाद आए वो 20 मिलियन जो सैलाब से पहले के मौजूद हैं वो 82.6% हैं, जो कि मिलियन पीपल हैं जो कि बेसिकली दे आर हैविंग फूड इनसिक्योरिटी, दे आर हैविंग माल न्यूट्रिशन. देन इट्स अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. An estimated 36% of Pakistanis live below the poverty line and almost half are illiterate. आधे से ज्यादा तो illiterate हैं, और 36% से भी कम ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. Poorer households typically spend over 60% of their income on food. जो गरीब बेचारा कमाता है वो ज्यादातर 60% जो है वो अपनी इनकम पे लगा देते हैं जस्ट फॉर द फूड, अपने बच्चों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, खुराक को अरेंज करने के लिए जो भी वो कमाई करते हैं 60% तो उसके अंदर लग जाता है. So it's a widespread poverty. It is 20 million who were affected by that disaster. They have got the food issue. Then there is 82.6 million people who are having the food insecurity. Then there is a widespread poverty, which is that 36% of Pakistani people live under below the poverty line, and 60% of them just spend their income on food. So because of the inflation rate, if you take its persistent rise in general price level, चीजें महंगी होती जा रही हैं दिन ब दिन, और महंगाई ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है. जो बंदा कमाई कर रहा है वो ज्यादातर खुराक पे ही कोशिश कर रहा है 60% लगाने की. पुअर सैनिटेशन.
50% of all Pakistanis have little or no access to clean toilets and drinking water. 50% जो आबादी है पाकिस्तान की, उनको ना क्लीन टॉयलेट्स मुयसर हैं, ना साफ ड्रिंकिंग वाटर मुयसर है. A condition that renders them vulnerable to infectious diseases. Vulnerability से infectious diseases की तरफ लेके जा रहे हैं. Then is child mortality. The biggest killers of children under 5 is in Pakistan are diarrhea and acute respiratory infections. सांस का मसला बच्चों के अंदर शुरू हो जाता है, बच्चों को डायरिया का मसला शुरू हो जाता है, और ये अंडर नरिशमेंट है उनकी कि इज एन अंडरलाइंग कॉज इन 38% ऑफ दोस केसेस. जो 38% केसेस देखे गए उनके अंदर ये सारे कॉजेज जो थे वो थे, लेकिन मेन मसला जो था वो अंडर नरिशमेंट थी. खुराक की ना होना या अंडर नरिशमेंट होना, उनकी नरिशमेंट सही तरीके से नहीं की गई. देन इज वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट. Conflicts along Pakistan's northwestern border with Afghanistan has forced millions of people to flee their homes from and they leave that area, and they are now in the Jalozai camp and the rest of the community जिधर host communities ने उनको जगह दी. तो ये अगर आप देखें millions of लोग just because of that war they have migrated, they are displaced from their own homes towards the camps and other areas. Since 2008, WFP has provided over 2.6 million of them. World Food Program is one of the most transparent systems of United Nations in Pakistan, और 2.6 million of them with food assistance दी गई World Food Program में 2008 में. Rising hunger. अब ये वो फैक्ट्स हैं जो हंगर से रिलेट करते हैं. अब मैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के भी तनाजुल में बात करूंगा. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी तरफ से हर इम्कान कोशिश की कि वो हंगर को रिड्यूस कर सकें, वो किसी तरीके से खुराक की, क्योंकि दे फीड पीपल, दे फीड द वर्ल्ड. वो पॉवर्टी को, वो जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी में फॉलोअप करते हैं, उनको खुराक की फराहमी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम है. और ये राइजिंग हंगर इज अनदर हंगर फैक्ट. Volatile food prices over the past 7 years have pushed the number of people who depend on food assistance in Pakistan from 38% to 49% in 2009. 49% लोग जो हैं they require food assistance और clean food assistance. पहले ये रेशो जो थी 38% पे थी in 2003. Now it is 49% in 2009 जिनको food assistance चाहिए. Wheat dependent Pakistan के अंदर मसला ये, wheat is Pakistan's main staple crop and most important source of calories. As a result of the flooding, ये जो floods आए, which submerged around 16% of all arable land in Pakistan, and the upcoming wheat harvest is expected to be around 15% smaller than the usual. जो पहले crops लगाई गई वो पानी की वजह से, सैलाब की वजह से बहुत मुतासर हुई. जो growth है वो 15% smaller growth होगी wheat की in Pakistan. Wheat has got the calories in it. Wheat की सबसे ज़्यादा जो है वो crops हैं पाकिस्तान में. और अगर देखें सैलाब ने जब से hit किया तो अब वो उनकी जो the quality of that wheat is it's not 100%. That is 15% smaller than the usual. 2 months into the flooding, its economic loss and social impact on Pakistan is though to size up. Millions of hungry affectees are awaiting emergency relief. अभी भी सैलाब की वजह से जो लोग मुतासर हुए हैं उनको emergency relief की जरूरत है, उनको फराहम करने की जरूरत है. In the midst of such an unparalleled disaster, the United Nations World Food Program (UNWFP) said it is actively engaging in tackling the worst food crisis in Pakistan's history, with a shorter run plan and longer term programs. So again, World Food Program is actively engaging in tackling the worst food crisis in Pakistan's history, और shorter plans भी हैं उनके, and they have got a longer term plans too. In an exclusive interview with Xinhua World Food Program, Pakistan's country director Wolfgang Harbinger said the aid agency teamed up with the government of Pakistan is leading a pilot UN development program to help the country for better disaster management and to improve the handling of food insecurity. WFP has a leading role working closely with the government at national,
provincial and district levels to improve their own capacity to handle the disasters, according to Harbinger said. So वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी आपने देखा तो ये हम लोग जितनी भी बात कर रहे हैं हम रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस का पर्सपेक्टिव कर रहे हैं, देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिर्फ अकेले नहीं काम करती, उनके साथ कोऑपरेटिंग पार्टनर्स काम करते हैं। वो अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, अगर फूड का मसला है तो फूड के लिए एक्शन अगेंस्ट हंगर एक कोऑपरेटिंग पार्टनर होगा। अगर माल न्यूट्रिशन का इशू है तो माल न्यूट्रिशन के लिए सेव द चिल्ड्रन या कोई और इदारा जो है वो कोऑपरेटिंग पार्टनर होगा। तो WFP जो है सिर्फ ये नहीं कि अकेली काम कर रही है, इसके गवर्नमेंट के साथ नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, डिजास्टर रिस्क को किस तरह रिड्यूस करना है और किस तरीके से डिजास्टर के दौरान कैपेसिटीज को हैंडल करना है, वो ह्यूमन एलिमेंट्स को हैंडल करना है। ये हरबिंजर ने, वुल्फगैंग हरबिंजर जो कि पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, उन्होंने ये बात बोली। पाकिस्तान हैज बीन ऑन अ गुड ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट बट सिंस 2003 द फूड इनसिक्योरिटी, 2003 से लेके अब तक फूड इनसिक्योरिटी हैज डेटोरेटेड ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज, सैलाब आ गया, अर्थक्वेक आ गया और फूड इनसिक्योरिटी शुरू हो गई। ग्लोबल फूड प्राइस हाइक हुआ, ओवरऑल दुनिया के अंदर आपने देखा कि प्राइस हाइक कर गया और मिलिटेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स भी ऑब्जर्व हुए। और मोरओवर द कंट्री डायरेक्टर सेड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सेट अप प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 2 years, 2 सालों के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया और एट द एंड ऑफ 2012 which would improve household food security particularly in the border areas and hardest hit areas by the flood. तो मेन फोकस जो 2012 के जो 2 साल का प्रोग्राम इन्होंने तश्कील दिया था उसके अंदर मेन फोकस जो है एक तो बॉर्डर एरिया के पास जितने भी लोग बसते हैं और जो हार्डेस्ट एरियाज हैं जो हिट हुए हैं बाय द फ्लड उस पर काम करना है, उनको फूड पहुंचाना मेन WFP का मकसद। Moreover, WFP representative said the flooding is the biggest disaster over in the history of natural or man-made disasters in Pakistan. जैसे मैंने आपको कहा कि there are 2 sort of disasters, one is natural, other one is man-made disaster. और 21 मिलियन लोग इफेक्ट हुए हैं। और जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, ही इज ऑफ द व्यू द फ्लडिंग इज द बिगेस्ट डिजास्टर एवर हिट in the history of the nation. An assessment shows luckily that 1/2 of them need urgent assistance. तो अगेन यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग बहुत ज्यादा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले से। रिप्रेजेंटेटिव ने भी बोल दिया कि फ्लडिंग is the major cause of the issue, major cause of the problem, and this disaster is in the history of mankind जो पाकिस्तान के अंदर ऑब्जर्व हुए डिजास्टर्स, और सबसे ज्यादा डिजास्टर जो है इसने हिट किए। So वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू वन न्यूज, लोकली प्रोड्यूस सप्लीमेंट्री फूड अच्छा मॉम provides energy and micronutrients to children aged 6 to 59 months suffering from acute malnutrition. जिनको हैजे का मसला है या जिनको खुराक का मसला है, जिनको पेट का मसला बच्चों को होता है, उन बच्चों के लिए एक सप्लीमेंट्री फूड तैयार की गई है लोकली तौर पे और उसका नाम है अच्छा मम, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू चिल्ड्रन एज 6 to 59. और दिस इज अगेन अ न्यूज बाय देम. Steps taken by WFP, World Food Program is taken practical steps to stabilize and improve the nutritional and food security levels of the most affected and a vulnerable population in the country. Yes, that is very true. जितने भी पुराने जो हकायक मैंने आपके सामने बयान किए, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट का जिक्र आपके सामने किया, लोकल तौर पे तैयार कर रहे हैं तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम is taking practical steps to stabilize and improve the nutritional and food security levels. और locally produced products जो हैं जिसमें वावा मम and अच्छा mom are being used in the community based management of acute malnutrition program is the key districts across the country. WFP has currently helped treat nearly 500,000 malnourished children under this program, which has seen high recovery rates. A man is in the picture. He helps and unload a shipment of supplementary Plumpy, a specialized food product designed to protect young children from malnutrition. So there is another product which World Food Program is locally they are targeting, and this is for in order to eradicate the problems of malnutrition, in order to solve the problems of malnutrition. हैजे का मसला, खुराक का मसला जो है उसको हल करने के लिए बच्चों को 6 साल के बच्चों से लेके
59 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये चीज सप्लीमेंट्री प्लम भी जो है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फूड प्रोडक्ट ये दिया जा रहा है. As Pakistan continues to reel from a disastrous wave of monsoon flooding, World Food Programme's operations to bring emergency food aid to 6 million people a month is being extended in time and expanded as to help long-term recovery. Further assistance from donors is required and needed. 6 million people और 3 महीने की खुराक, आप खुद अंदाजा लगा लें कितना डोनेशन रिक्वायर्ड है यूनिसेफ को. और ये सिर्फ इस फ्लडिंग की वजह से, देयर आर अदर डिजास्टर्स टू, लेकिन फ्लडिंग की वजह से जो इश्यूज हैं वो अभी डिस्कस कर रहा हूँ. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऑपरेशन जो कि स्वात में भी है, बुनेर में भी है, जो कि अदर एरियाज में भी है, जलोजई में भी काम कर रहे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले. उनके बड़े बड़े शेल्टर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर खुराकें दी जा रही हैं टूवर्ड्स IDPs. तो आने वाले 3 महीनों के लिए भी डोनेशंस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को रिक्वायर्ड. World Food Programme has been streaming emergency humanitarian assistance into Pakistan since the beginning of August and has so far received just $1.103 million. The budget required for the new emergency food relief operations through to July 2011 is now $600 million. World Food Programme ka aims to provide emergency food assistance to an average of 6 million people each month. While transitioning towards recovery activity, transitioning is the change from one state to another state. कि एक recovery activities की तरफ वो जाएं, such programs को initiate किया जाए जिसमें लोगों को cash and food in return for work on projects to rebuild their communities, cash for food projects जो है उनको initiate किया जाए, वो काम करें, उनको food दी जाए, उनको पैसे दिए जाएं. तो उस तरह के scenarios को World Food Programme जो है अभी work on कर रहा है. So there is an estimate, World Food Programme, that more than 10 million people need immediate food assistance. World Food Programme will aim to reach the majority of those affected, while the Pakistan government and NGOs are also providing food assistance. In addition to providing food to families, World Food Programme is also setting up a specialized feeding program targeting small children and the pregnant and nursing mothers who are particularly vulnerable to the effects of hunger and malnutrition. So this is again an estimate. अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के टैग लगे हुई खुराक जो है वो आपके सामने होगी. इसमें आटा होगा और they are only utilized for such operations. और ये खुराक जो है सिर्फ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल को दी जाती है. सबसे बड़ा मसला जो कि ऑब्जर्व किया जाता है जब रिलीफ दी जा रही होती है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कम्युनिटी को आपने जिस वक्त खुराक डिस्ट्रीब्यूट करनी है उस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे ज्यादा लड़ाइयां, सबसे ज्यादा लोगों के दरमियान, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो प्रोवोक होते हैं. और उनको बेहतर हल करने के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता चलूं. जब अर्थक्वेक हिट हुआ 2005 में, So I was in Azad Jammu Kashmir at that point of time. I was working for the earthquake affectees. तो I've seen ICRC जो है जो रेड क्रॉस है उसका रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी एक ग्राउंड में की और प्रॉपर लाइंस बना के की. अभी भी मैं जिस वक्त लास्ट टाइम 2008 में फ्लड्स ने हिट किया और जब मैं चारसदा गया तो आई हैव सीन सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन in during the distribution mechanism. So although by the NGO side, for the United Nations side, everything is okay, but once you are distributing the product, you are distributing the relief items towards the marginalized community, then you need to be very much careful. You need to make certain lines, you need to see the ID cards, then you need to see the people that they have got the stuff or not, they have received it or not. कुछ ज्यादा तो नहीं ले गए, ज्यादा ले जाए तो खैर है, लेकिन किसी और को बेचे ना जाके. अब जैसे अर्थक्वेक में देखा गया, अर्थक्वेक में जो डिस्प्लेस लोग थे उसमें मैक्सिमम को ये ऑब्जर्व किया गया कि उन्होंने अपने टेंट्स भी बेच दिए, जो उनको टेंट्स दिए गए रहने के लिए. तो हो सकता है उनके पास एक से ज्यादा या दो या तीन टेंट्स हो, तो वो कोई मसला नहीं है, बेचना अपनी जात के लिए. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म स्ट्रेटन अप. ये फॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए.
In conclusion, this is one example of World Food Program, United Nations International Children Education Fund. You talk about United Nations Military Observer Group. Pakistan Army has went as a UN peacekeepers in Congo and Somalia, in Bosnia, and they have given lots of lives, sacred lives, towards the peacekeeping in all over the country, in all over the world. And Pakistan Army is named as the best among the first 10, and they are really working as a peacekeeping on various missions on Congo, and they have went to Somalia, they have went towards Bosnia, and they've worked over there as peacekeepers. If you talk about other organizations, World Health Organization, they are providing health facilities to the United Nations की agency है, health facilities दे रहे हैं. If you talk about other United Nations जो की और जो organizations हैं, ये तो मैंने military observer group की example दी आपको जो peacekeeping missions पे गए, UNICEF भी है, United Nations Development Program जो है UNDP, उनके अंडर भी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होते हैं, वो रिसर्च साइड पे, कंसल्टेंसी साइड पे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं. UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, अगेन एक ऐसा अदारा है जो कि रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज पे काम करता है, बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व है. 2002 में UNHCR ने 19 लाख अफगान रेफ्यूजीज रिपेट्रिएट किए अफगानिस्तान. अब क्योंकि ड्यूरेंट लाइन इतनी बड़ी है एंड इट इज नॉट सिक्योर, तो जो रेफ्यूजी चमन के रास्ते गया वो फिर चित्राल के रास्ते वापस आ रहा था. तो देन दे इंस्टॉल्ड आई स्क्रीनिंग मशीन्स ओवर देयर. होता ये है कि वो वॉलंटरी रिपेट्रिएशन होती है अफगान रेफ्यूजी की UNHCR के अंदर. सो देयर अदर एरियाज, अदर इदारे टू. यूनाइटेड नेशन itself, it plays a significant role in humanitarian efforts, like you have witnessed from UNICEF, working from the working of World Food Program, from the working of United Nations Military Observer Group, from the working of United Nations High Commission for Refugees. United Nations itself, it plays a significant role in humanitarian efforts, not in just relief, but reconstruction, rehabilitation की भी बात की जाए, water and sanitation की भी बात की जाए, health and hygiene की भी बात की जाए, safe drinking water facilities की भी बात की जाए, camps की monitoring की बात की जाए, secure camps देना, बच्चों की तालीम की बात की जाए. हर लिहाज से इंटरनली डिस्प्लेस पीपल को यूनाइटेड नेशन जो है वो सहूलियात दे रहा है. और अब नहीं देखा कि अभी भी इमदाद की इन इदारों को जरूरत है, सो दैट कि वो आगे आने वाले 3 महीने में, जिसमें फ्लड्स ने तो हिट किया ही किया लोग, अब उन 3 महीनों की खुराक भी इनको पहुंचानी है. तो वो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मेजर काम है. और इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत से और से इदारे भी, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की बात करूं तो पीस कीपिंग मिशंस में जितने भी पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स जाते हैं वो यूनाइटेड नेशंस की पेरोल पे जाते हैं और दे वर्क ओवर देयर. और आप यकीन करें कि बहुत सी लाइव्स दी हैं. they gave sacrifices just on the name of peacekeeping in the world. So floods have, if you talk about Pakistan, the floods have recently devastated lots of communities, and thus marginalized communities provided necessary assistance from UNICEF and World Food Program. The main focus is again that World Food Program or UNICEF or UNHCR, they are working for the marginalized community, or they are working for the humanity, they are working for the refugees, or they are working for the assistance. मेन मकसद इस पूरी कंबाइंड एफर्ट का ये है कि जो अवाम जिसके पास हंगर का, जैसे आपको इतने प्रॉब्लम्स दिखाए वर्ल्ड ओवर, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, ओवरऑल प्राइसेस हाइक कर गई हैं, तो किसी न किसी तरीके से कम्युनिटी को पार्टिसिपेट किया जाए, उनको री एस्टेब्लिश किया जाए, उनको काउंसल किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए, और उनके बाद उसको एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के तौर पे रखा जाए. इसमें उनका और कोई मकसद नहीं सवाए एक फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव के, सवाए इस कम्युनिटी डेवलपमेंट के. अगर आप अर्थक्वेक की बात करें, यूनाइटेड नेशंस हैव वर्कड इन आजाद जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड नेशंस हैज वर्कड इन एवरी बिट एरिया. अब फ्लड्स आए हुए हैं, तो फ्लड्स के दौरान भी आपने देखा कि कितना ज्यादा काम यूनाइटेड नेशंस और इसके कॉर्पोरेटिंग पार्टनर्स ने पाकिस्तान में किया. और ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जब भी डिजास्टर हिट होता है, तो सबसे पहले तो फंड्स रेज किए जाते हैं और साथ साथ कॉर्पोरेटिंग पार्टनर्स की मीटिंग्स कॉल होती हैं. उसके बाद उनको असाइन कर दिया जाता है कि आप हेल्थ एंड हाइजीन के एनजीओ हैं, आप हमारे साथ कॉर्पोरेटिंग पार्टनर हैं, आप न्यूट्रिशन पे काम करेंगे, आप हमारे साथ कॉर्पोरेटिंग पार्टनर हैं, आप बच्चों पे काम करेंगे, आप हमारे साथ कॉर्पोरेटिंग पार्टनर. यूनाइटेड नेशन फिर उसी हवाले से
फंडिंग जनरेट करता है। अब अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मैंने आपको एग्जांपल दी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रोविंशियल हेडक्वार्टर को मैंने विजिट किया था और अभी 6 महीने 7 महीने पहले की स्टोरी है, और मैंने आई नेवर सीन सच अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, or they are really in that theme in to help the poor, to help the needy, and hunger they have highlighted hunger is the biggest issue. UNICEF, they are working for the past how many decades in Pakistan, and they are seriously working for the children protection, for the education purpose, for the funding towards giving them good hygiene environment, good safe and healthy drinking water. So in the nutshell, United Nations and rest of the cooperating partners, they played a significant role. इस लेक्चर के अंदर हमने यूनाइटेड नेशंस का पर्सपेक्टिव जाना, और हम लोग आगे भी एक लेक्चर में यूनाइटेड नेशंस के पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। उसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस को मैं देखूंगा, मद्देनजर रखूंगा, आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। आप लोगों के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल डोनर्स की अपनी वर्किंग क्या है। पहले हम लोगों ने बातें की सारी रोल ऑफ एनजीओज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट इन पाकिस्तान पे, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग अपना फोकस जो है थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल डोनर्स की बात भी शुरू हो चुकी है। और इंटरनेशनल डोनर्स की आज जो हम लोगों ने बात की उसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुतालिक बात की, यूनाइटेड नेशंस की अपनी लिंगोस टर्मिनोलॉजीज के मुतालिक बात की। आने वाले वक्तों में जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम यूनाइटेड नेशंस का एक और पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा, और उसके बाद I'll show you one report which is perceptions of humanitarian agenda, which is post Pakistan earthquake study। जब अर्थक्वेक हिट हुआ 2005 में, उसके बाद क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान में, किस तरीके से ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें इंटरनेशनल डोनर्स भी हैं, बिंगोस भी हैं, बोंगोस भी हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी, किस तरीके से इन लोगों ने वर्किंग करके इतनी ज्यादा आवाम को जो कि उस जल्जले की वजह से हिट हुई, अफेक्ट हुई, उसको किस तरीके से उन्होंने अपनी मदद आपके तहत खड़ा किया। 27 दिनों में road which is leading from Kohala towards Muzaffarabad after the earthquake in 2005 it was opened, और signals Pakistan Army की signals battalion ने they have performed diligently, Pakistan infantry has performed, army has performed diligently, and we have witnessed NATO, we have witnessed US forces, and equally we have witnessed other United Nations organization and rest of the international donors and rest of the local organization who worked very diligently for the people living in the earthquake region who were affected by the earthquake region. आने वाले लेक्चर में मैं I'm going to discuss with you another perspective of United Nations। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।